खबर आपको बता दें, पूर्वोत्तर को पीएम मोदी की बड़ी सौगात और आइजोल से दिल्ली तक ट्रेन चलेगी। वर्चुअली कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुड़े, सीधे तस्वीरें। मोबाइल कनेक्टिविटी एंड इंटरनेट कनेक्शंस, इलेक्ट्रिसिटी, टैप वाटर and LPG connections. The government of India has worked hard to strengthen all kinds of connectivity. Mizoram will also benefit from the Udan scheme for air travel. Soon, helicopter service will begin here. This will improve access to remote areas of Mizoram. Friends, Mizoram has a major role in both our Act East policy and the emerging Northeast Economic Corridor. With the Kaladan multi-modal transit transport project and Serang Humang Buchehua rail line, Mizoram will also get connected to the Bay of Bengal through Southeast Asia. Due to this, trade and tourism will be boosted across Northeast India and Southeast Asia. Friends, Mizoram is blessed with talented youth. Our work is to empower them. Our government has already started 11 Eklavya residential schools here. Work is going to start 6 more schools. Our Northeast is also becoming a major hub for startups. I am happy that around 4,500 startups and 25 incubators are operating in the region. Young people of Mizoram are actively joining this movement and creating new opportunities for themselves and others. Friends, India is quickly becoming an important hub for global sports. This is also creating a sports economy in the country. Mizoram has a wonderful tradition of sports, producing many champions in football and all other sports. Our sports policies are benefiting Mizoram as well. Under the Khelo India scheme, we are supporting the creation of modern sports infrastructure. Recently, our government has also come out with a national sports policy, Khelo India Khel Niti. This will open new doors of opportunities for the youth of Mizoram. Friends, whether in our country or abroad, it gives me great happiness to play the role of an ambassador of the beautiful culture of the Northeast. Encouraging platforms that showcase the potential of the Northeast is important. A few months ago, I had the opportunity to participate in the Ashtalakshmi festival in Delhi. It showcased the textiles, crafts,
GI tag products and tourism potential of the Northeast. At the Rising Northeast Summit, और इसी बीच जयपुर से बड़ी खबर है। पिपलोदी हादसे के बाद सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने घोषित किया है राहत पैकेज। जी हां, कुल 1,85,00,000 के विकास कार्य गांव में शुरू होंगे और 1,50,00,000 रुपए से फिर से नया विद्यालय भवन बनेगा। 11 लाख रुपए से नए सामुदायिक भवन के निर्माण को मंजूरी मिली है। मृतक के परिजनों को 13 लाख सहायता और संविदा पर नौकरी मिलेगी। 11 गंभीर घायलों को 1,36,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको जयपुर से बता रहे हैं। पिपलोदी हादसे के बाद सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने राहत पैकेज घोषित किया है। कुल 1,85,00,000 के विकास कार्य जो है वो गांव में शुरू होंगे। 1,50,00,000 रुपए से फिर से नया विद्यालय भवन बनेगा। 11 लाख रुपए से नए सामुदायिक भवन के निर्माण को मंजूरी मिली है। और इसी बीच जयपुर से बड़ी खबर है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर आज बैठकों का दौर चलेगा। प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा संगठनात्मक बैठकें लेंगे। सुबह 11 बजे संभाग प्रभारियों, जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारियों की बैठक होगी। शाम 4 बजे विधानसभा कोऑर्डिनेटर्स की बैठक होनी है। संगठनात्मक मुद्दों और आगामी निकाय पंचायत चुनाव को लेकर के चर्चा होगी। बड़ी खबर इस वक्त आपको जयपुर से बता रहे हैं, जहां पर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर आज बैठकों का दौर चलने वाला है। प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा संगठनात्मक बैठक लेंगे। सुबह 11 बजे का समय होगा। संभाग प्रभारी, जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारियों की बैठक होनी है और शाम 4 बजे विधानसभा कोऑर्डिनेटर्स की भी बैठक होगी। तो वहीं पाली के बिरावास गांव में बारिश भले ही थम गई हो, लेकिन यहां की जिंदगी अभी भी पानी में डूबी है। सोजत मुख्यालय से सिर्फ 13 किलोमीटर की दूरी पर बसा ये गांव हर साल मानसून में एक टापू बन जाता है। यहाँ का बिरावास रूपावास मार्ग, जिस पर बनी रपट से पानी का सैलाब गुजरता रहता है। लोगों का गांव से निकलने का रास्ता बंद हो जाता है। लोगों को टूटी रपट से 2 से 3 फीट पानी से निकलना पड़ता है। ये सिर्फ एक रास्ता नहीं है, बल्कि उम्मीद और जिंदगी की डोर है जो हर साल टूट जाती है। सबसे ज्यादा तकलीफ छोटे छोटे बच्चों को हो रही है। ये जो बरसाती नाला है, रूपावास से बीरावास की तरफ जो रोड जा रही है, यहाँ पर पिछले साल भी इसी प्रकार से भरा हुआ था पानी। पिछले वर्ष भी कई यहाँ पानी के अंदर रहने वाले जीव, सांप वगैरह भी मिले हैं। पिछली बार किसी को काटा भी था और इस बार भी यही हालात है। छोटे बच्चे जो प्राइमरी तक के बच्चे हैं, वो उनके घुटनों तक और घुटनों से ऊपर तक पानी भरा हुआ रहता है।